So, hello everyone, and welcome back to our new episode of the Perpetual Stew podcast where the conversations don't end. I am your host Yash, along with my co host Ritesh and Ritik. और thank you so much for all the love that you guys have been giving us. बहुत अच्छा लग रहा है सही में viewing the comments and the likes and all the comments that you are dropping us. DM मत करो नीचे comment section में भी तुम लोग अगर वैसा comments डाल दोगे हम लोग को एग्जैक्टली ज्यादा अच्छा लगेगा. मतलब DM भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंगेजमेंट चल बढ़ा रहा है. दो थोड़ा. हाँ, engagement बढ़ाओ थोड़ा, comment which section is में भी highly कुछ enjoy required. देता. अपार्ट फ्रॉम दैट आज का टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल है. एंड्रू टेट काफी ज्यादा ब्लव कर रहा है इंटरनेट पे. पता नहीं तुम लोगों ने वो वीडियो देखा है कि नहीं, बट आई हैव अ वीडियो. इसमें एंड्रू टेट हैज सेड सम थिंग्स अबाउट इंडिया. So we will take a look at that video and then get on with the our opinions and stuff. But make sure that we guys are not historians. We have just read about these things, and we don't claim that whatever we are going to say is 100% accurate. It's they are just true to our knowledge, है ना, to the best of my knowledge. They are true. कि हमने जो भी Before, रिसर्च किया है, कोशिश करिए कि क्रेडिबल सोर्सेज से ही पढ़ा हो या जानने की कोशिश करी हो. बट हिस्ट्री इज हिस्ट्री और हम लोग उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, तो वी कांट क्लेम एनीथिंग टू बी ट्रू. दे आर जस्ट ट्रू टू माय नॉलेज. इट्स एंड प्योरली ओपिनियंस, है ना. इट्स नेवर अ जजमेंट. these are It's my not facts. opinion, These and are merely opinions. Don't no, go. no, they are facts. They are हाँ facts. मतलब they are facts, but like हाँ, more or less are opinions. You our read opinions. up. हाँ, अपने से खुद से पहले तुम लोग पढ़ लेना before you guys go on quoting कि नहीं ऐसा वहां पे सुन के आए थे. Do your own research before you say anything. And Right. let's see the video. So I'll share the screen and share sound, share. So can you guys see the video? Yes. I'll play it. A lot of do you think India, let me ask you the question then, do you think India suffered, do you think India is in a worse place now than it would have been if it was never colonized by the British? Now, I'm not saying the British didn't kill people, I'm not saying they were completely fair, but also the world was a different place back then. Nowhere was fair. If the British didn't turn up to India in the 1800s, then the Indians would have been killing the Indians. People just killed each other. That's how it worked, right? Do you think India would be in a better place today if it was never colonized by the British? I mean, they're pooping in the streets right now. What would they be doing if they didn't? The British didn't turn up. I mean, if you look at some of the biggest, best buildings in most of these countries, or some of the most critical infrastructure, it's the shit the British built 200 years ago to this day. And they had their liberation for a very long time, and they haven't managed to surpass the infrastructure the British built. Do you want to talk about why that is? I mean, I'm sure there's reasons, but my point is, the British turned up to a country. They ruled India with less than fucking 60,000 men. The Indians could have kicked their ass any time, but they turned up and they gave genuine value to the point people thought, okay, these white people turned up on this boat. They know shit. Oh, whoa, railroad. Well, okay. Whoa, schools. They didn't do it purely by force. India is a big place. They did it with a very small contingent, and they did it by adding value. And yeah, the British were not people you want to fuck with, but they definitely added value to their colonies. And I know this is going to upset the whole fucking world. All the people are going to say I'm a colonist. This is a pretty diverse panel. I don't know where I come in on the Brown scale, but it's a pretty. I know where I come in. Yeah, it's a pretty diverse panel. But the world was a dangerous place back then. And I think being under the British Empire afforded these countries a lot of security and safety and technological advancements. And I don't think it was all completely a bad thing. Yeah, I mean, I'm from Barbados, so like we were colonized as well. But we got our independence as well. But Andrew, as a So that was the video, guys. Yeah, like we saw that the guy who looks equivalent of a human testicle. Like the audacity to talk shit about a country, like which is the largest GDP, like it outgrew UK's GDP this year. Like बहुत ज्यादा वैल्यू होता है उस चीज का भाई. और इंडिया डेवलप कर रहा है भाई. इट्स नॉट लाइक कि हाँ इट्स बीन 75 years. 75 years is not a very long time comparing to the time that we were enslaved by the Delhi Sultanate, the Mughals, and then by the Britishers.
तो वो जो 500 साल का हिस्ट्री है वेयर वी वर colonized और इतना सब कुछ हुआ इंडिया के साथ, compared to that 75 years is a very short time. What do you guys think about Right. it? Like, are we doing enough? We are doing enough. The point is, we are yet to conquer many things. Matlab, we certainly know our limitations. We certainly know where we are lacking, for that matter. But yes, we have done a lot. We have come along a long path. It's way huge, which way too huge for someone to speak such a thing for my country. Yeah. Like, don't- imagine a person like like if you are going to talk shit about something, like at least research a bit. Like जैसे कि है कि कॉन्सेप्ट दिया स्कूल का, वो नहीं बहन, like अपने पास स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है. बहुत There पहले were से था. बहुत गुरुकुल्स, पहले से. हाँ ये बहुत We सारा ये had सब गुरुकुल. बहुत पहले से. हाँ. अरे सबसे पहले तो मतलब इफ वी डेट गो बैक, सबसे पहले सबसे ज्यादा एडवांस अगर कोई सिविलाइजेशन रहा था तो वी हैड दैट सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर दैट मैटर. तो Yeah. मतलब नीडलेस टू से कि हम लोग कितने एडवांस थे. मतलब इसमें ये तो हिस्ट्री है ना. इफ आई स्टार्ट कोटिंग अबाउट मतलब माइथोलॉजी की पुष्पक हाँ. विमान और ये और वो, तो दैट इज मतलब वो That तो is कहीं कहीं किसी को yeah, एक्सेप्टेबल रहेगा, किसी को नहीं रहेगा. बट yeah. जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो तो है. आईवीसी का रिकॉर्डेड हिस्ट्री है. वी हैव दैट. वी वर वन ऑफ द मोस्ट हाई टेक सिविलाइजेशन फॉर दैट मैटर. Like saying that we would probably be shitting on streets, like Indus Valley civilization had the oldest yeah, drainage system, or like covered bathroom, You know a private very good thing bathrooms. about Yeah. the a very nice thing about the drainage system, particularly about the Indus Valley civilization. We had covered drains back then, Exactly. Yes, yes, which yes. is not a reality in India today. We had Mhm. covered drains. Also, we had small openings at regular intervals so that regular inspection and cleaning could be done. So they were so thoughtful कि कहीं कभी clog होगा and we will have to move the stones. तो उन्होंने एक stone को movable रखा और बाकी पूरा drain covered था. और Yes, yes, yes. ये मूवेबल स्टोन रेगुलर इंटरवल्स पे था, जिसकी वजह से वी कुड इंस्पेक्ट द ड्रेन्स एंड क्लीन एज वेल. तो ये And इतना people ज्यादा had private हाईटेक bathrooms उस at टाइम their पे था. home. People had प्राइवेट private बाथरूम्स. हाँ, bathrooms at राइट their home. Like ऐसा नहीं कि राइट अपना राइट civilization राइट. बहुत ज्यादा एडवांस था. Like all these people from West saying कि हाँ इंडिया को कभी इतिहास रखने नहीं आए, they never had written history. तो मुगल आकर के तक्षशिला और नालंदा में जला क्या रहा था जो 1.5 महीने तक जला? What the fuck were they burning there? लाइक कुछ भी आकर के बोल देना, लाइक जस्ट डू योर रिसर्च. ये जो व्हाइट वॉशिंग कर दिया गया है, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी सबके दिमाग में है कि लाइक पीपल विल कम अप टू यू एंड से कि हाँ इंग्लिश दे करके गया. नहीं जरूरत था. नहीं इंग्लिश जरूरत था. नहीं जरूरत था. एकदम जरूरत नहीं था. इंग्लिश देने का सीधा मतलब मैकॉले कमेटी एक कर आया था उस टाइम पे. हम्म. उसके बाद ही इंग्लिश एज मतलब एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश उसके बाद ही इंट्रोड्यूस कराया गया. एंड वो इंट्रोड्यूस कराने का सीधा सीधा मकसद था कि इंडिया में इकोनॉमिकल लेबर मिलेगा उनको. मतलब इकोनॉमिकल क्लर्क्स मिलेंगे. तुम लंदन से मंगाओगे ऐसे अरिथमेटिक हाँ 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 कैलकुलेशंस हाँ करने हाँ. के लिए, या फॉर दैट मैटर चिट्ठी लिखवाने के लिए डिक्टेशन देके, तो आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा. तो फिर यहाँ पे किसी को अंग्रेजी सिखानी थी. सो वो सिखाने का मकसद ही यही था कि उनको एक तो चीप इकोनॉमिकल लेबर मिल जाए यहाँ पे काम करने के लिए, और दूसरा कि इंडियन स्टार्ट थिंकिंग लाइक द ब्रिटिशर्स. मतलब तुम इंग्लिश में थॉट्स तुम्हारे आने लगेंगे तो तुम स्लेव ही हो जाओगे ना. फिर तुम उस हाँ हाँ हाँ. तुम्हारा भी माइंडसेट वही हो जाएगा जो जो भाषा में आपको सिखाया गया है. सही सो बात है. ये एक रीजन था. नो डाउट कि आज की डेट में ये हमारे लिए बून से कम नहीं है कि हम लोग इंग्लिश जानते हैं, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि I guess इंग्लिश की India is the एक्सेप्टेबिलिटी largest बहुत. India is the largest country that speaks English, na? And the highest population that speaks English. I guess. I don't दैट know. स्पीक्स इंग्लिश. आई गेस सो. I आई guess गेस like सो. it's the इवन आई. highest or हाँ second highest, like somewhere in that zone. हाँ Like अब आबादी के हिसाब से तो highest राइट. ही होंगे.
needless to say. Needless to say. तो ये इसलिए मतलब कि because we people start thinking like the Britishers do, और हम लोग उनके ऐसे लोअर लेवल क्लरिकल जॉब्स कर सके, इसलिए हमें इंग्लिश सिखाया गया था। कोई हमारे एडवांसमेंट, हमारी तरक्की के लिए तो नहीं किया था, तो कुछ भी Exactly, exactly. I completely agree on that. Like वहाँ पे तुमको कोई भी लाइफ स्किल नहीं सिखाया जा रहा है, and people who are watching this video, the parents who would be watching this in the future when we go famous or viral, इसी तरीके से, and like you guys are watching this video in the time ऐसा, और today's like see, friends who become हाँ, parents tomorrow. yeah, or the people who are going to become parents tomorrow. Teach your kids some life skills. उनको सिखाओगे कैसे negotiate करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे सब्जी खरीदते हैं, सिर्फ पढ़ने पर मत ध्यान बोलो उनको देने के लिए। Teach them various life skills as एग्जैक्टली well. मतलब अगर हम लोग Parents पीछे से मुड़ के देखें तो देर आर जस्ट अ वेरी फ्यू थिंग्स जो कि मतलब लाइफ में काम आता है। आई डोंट थिंक कि मतलब उतना भी कोई चीज है जो हम लोग स्कूल में सीखे और वो आज मेरे को काम आ रहा है नॉर्मल लाइफ में। आई मीन आई Pythagoras नेवर theorem stands nowhere. I just स्टैंड्स want to say नोवेयर। सेकेंडरी की Pythagoras theorem का कोई काम नहीं था। और कंप्यूटर पे वो हेलो वर्ल्ड लिख करके भी मेरा कुछ ऐसे लाइफ में बहुत अच्छा हुआ नहीं है। जैसे वो जो नीदर 40 बार शेक्सपियर ऐसा, आर्ट दाउ लव दिस, वो भी कहीं काम नहीं आ रहा वो है तो अभी। आर्ट है, आर्ट तो कंटेम्प्रेरी है, वो ऐसे लिटरेचर वाला चीज है, तो वो आई सपोर्ट। या यू हाँ, सपोर्ट वो लिटरेचर, बट अभी लिटरेचर जो बात हो रहा है कि मतलब यूज या क्या या बट क्या नहीं, आई यस डोंट यस, थिंक कि मतलब एग्जैक्टली कुछ यूज आ रहा है। लेकिन कुछ वैसा लाइफ स्किल सिखाना, बेसिक लाइफ स्किल्स जिसमें कि एग्जैक्टली वो आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सब, जैसे कि बेसिक चीजों को रिपेयर कैसे करते हैं वो भी सिखाना चाहिए ना यार, कि नल वल कैसे रिपेयर होता है। ये सब लाइफ स्किल है। लाइक इफ यू आर टीचिंग समथिंग्स, तो आप ऐसा बेसिक बेसिक छोटे छोटे चीज जिस जो भाई कि सबसे आपको पहला डिपेंडेबल चीज तो बनाए। तुम आज के डेट में कोई भी काम देख ले, कुछ भी कर ले, इधर यू आर हम्म डूइंग अ जॉब या फिर बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहला चीज जो तेरे को सीखना होता है दैट इज गोइंग एंड अप्रोचिंग समवन। ये चीज हम लोग कहाँ सिखाया जाता है कि यू गो एंड अप्रोच समवन, हाउ टू अप्रोच समवन, हाँ, कहीं लाइक नहीं सिखाते। समवेयर इट फॉल्स ऑन द पेरेंट्स एज वेल, कि हाँ, लाइक लेट योर राइट। किड्स गो आउट एंड टॉक टू पीपल। घर पे खाली बैठो और ट्यूशन जाओ इज नॉट लाइफ, इज नॉट गोइंग टू और बी एनफ अभी फॉर का द तो चिल्ड्रन। मतलब राइट नाउ द किड्स आर सो इतना बुरा एनवायरनमेंट में फंसा हुआ है कि वो लोग को धक्का देना पड़ता है कि भाई बाहर जा, कुछ खेल, चार लोग से मिल। घर पे लैपटॉप है, फोन है, दे आर जस्ट यूजिंग दैट विच इज ऑफ नो यूज आई गेस। अगर वो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है सो फिर भी ठीक है, बट रादर देन दैट कोई काम नहीं है। नहीं, हम तो वही कह जाओ रहे हैं, बाहर पढ़ाई जाओ। मत करो। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पढ़ाई करो ही मत। मोबाइल पे ना, लैपटॉप पे ना, फोन पे, कहीं पे पढ़ाई मत करो। बुक्स हैं थोड़े बहुत, उनको पढ़ लो। बेसिक जो एग्जैक्टली लाइफ स्किल है उस पे फोकस करो। एक थोड़ा ऐसा कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन काम करता है कभी कभी। तो कीप दैट इन माइंड किड्स। बहुत काम करता है यार, कभी कभी क्या कनेक्शन वो चीज होता है कि मतलब अभी तो ठीक है, चलो बच्चों बात कर रहे हैं, देयर कनेक्शन आर कनेक्शन इज प्रीटी डिफरेंट, बट हाँ कभी ना कभी ऑब्वियसली दैट कम्स इनटू पिक्चर। आज नहीं आएगा, हाँ 10 साल बाद आएगा। And now the atrocities of the British Empire on the बोला ऋतिक ऋतिक बोला कचरा भी खेलेगा, तो that is a point to be noted कचरा भी कि खेले। देखो बाकी सब आई चीजें गेस अलग, ब्रिटिश इंडिया का बात हो रहा है तो लगान का बात ना हो तो आई फील हो ही वेरी नहीं सकता ऑफेंडेड। है। आई 30 गुना लगान एग्जैक्टली कि क्यों? मतलब आज कचरा भी 30 गुना खेलेगा। लगान। यस। आई गेस द अरे टॉपिक कचरा। शुड बी कचरा भी खेलेगा, द ब्रिटिश ये रूल इन इंडिया। या 3 गुना लगान देना पड़ेगा। या 3 गुना लगान देना पड़ेगा भाई, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यस। तो अच्छा ठीक है, तो फिर देखो ऐसा, मतलब हाँ उस वीडियो पे आते हैं कि उस वीडियो पे बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हम लोग को, और ये दिए, क्या हुआ? हाँ, नहीं, बोल बोल, हमको लाइक मेरे दिमाग में कुछ जोक आया उसके वजह, आई व्हिच आई विल बी स्पीकिंग बिल्डिंग्स के ऊपर। तो मतलब ऐसे उस वीडियो में एंड्रयू टेट ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जो आज के डेट में भी सस्टेन कर रही हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीजें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात आई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रेलवेज को ले, ठीक है, फॉर एक एक चीज ले लो, रेलवेज। हमारे रेलवेज जो इंडिया को ब्रिटिशर्स का गिफ्ट मिला है,
वो एक्चुअली आप देखोगे कि वो हमारे लिए नहीं था. इफ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली, तो आप देखोगे कि वो ब्रिटिश गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए था, पोर्ट पे पहुंचाने के लिए था, एग्जैक्टली, इसीलिए ट्रेड महात्मा पर्पस गांधी के को लिए फेंक था. दिया गया था ट्रेन से. अच्छा. हाँ हाँ हाँ. और मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज झेलना पड़ा था. Yes. उस टाइम पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज झेलना पड़ा था इंडियंस को. ट्रेन में बैठना इंडियंस के लिए केवल सेकंड क्लास का डिब्बा हुआ करता था जिसमें Yes. इंडियंस ट्रैवल करते थे. Like और भाई it वाई was मतलब ये ओनली कहीं से ट्रेन्स, हर जगह तो ये चीज लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, राइट, हाँ, हर ये भी जगह. काफी फेमस. yes. जो कलकत्ता में भी जो ट्राम ये बनाया गया था, इट वाज सो ट्राम्स, दैट कि ट्राम. जो भी ब्रिटिशर्स की वाइफ हैं और वो लोग जो है पूरे शहर को घूम सकें कलकत्ता के. घूम सके. इसी पर्पस के लिए उसको बनाया गया था कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम ना हो. तो उनके मतलब जाने के हर एक बाद. चीज उन लोग हाँ, अपने मजे के लिए किया है. एग्जैक्टली. इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात अगर करोगे तुम, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में, मतलब अभी तक लोग बोलते हैं कि we missed the bus of, मतलब I heard this from Mr. Sachi Tharoor, कि India missed the bus of for Yeah, industrialization industrialization. because you threw us under its wheels. So obviously we'll Exactly. miss the bus, right? हाँ. मतलब गोइंग बैक we'll see कि इंडिया जब जब पहले की बात करें, अगर अगर मतलब हम लोग बात करें कि 1700s की बात करें, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली बात चल रही थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक बात आती है कि 1700s में वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडिया का शेयर बनता था 27% के अराउंड. ठीक है. Mhm. बाई 1800s व्हेन द ब्रिटिशर्स एक्चुअली केम टू इंडिया प्रॉपरली, तो उस टाइम पे इंडिया का शेयर इट वाज क्लोज टू 23 to 24%, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली. व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, ठीक है, when after 200 years of और मतलब आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जो उन लोगों ने हमारे Almost, ऊपर हाँ, शासन almost किया, 200 years. Yes. almost 200 years, तो मतलब Mm. when the Britishers left India, our share of the world's economy or the world's total what you say production was Mhm. below 4%. Below यही 4%. तो Yeah. बात है ना भाई, From they took everything 24%, from instead of 24% giving. means, मतलब if you hear the number 24%, this should Mhm. strike in your mind that 1/4 of the Mm. total Total words. production belonged to India. we Yes. we were Exactly. we were we were a major we had a major industry of textiles, steel making, for that matter. We had what shipbuilding capacities at that time, but everything. तो ये कहना कि मतलब कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ किया है, तो नो, ब्रिटिशर्स एक्चुअली उन लोगों ने ब्रिटिशर्स अपने यहाँ लिए आए, किया जो भी किया. ब्रिटिशर्स ने अपने लिए कुछ काम किया ताकि उनको यहाँ पे रहने में इजी हो, चाहे वो कुछ भी बनाना हो, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्स, ट्राम्स, स्कूल्स इनफैक्ट इसलिए बने थे ताकि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ सके. आई डोंट थिंक पर कि मतलब स्कूल्स इंडियंस वेर अलाउड स्कूल्स बनना इन स्कूल्स. स्कूल बनना तुम ऐसे ही समझ लो ना कि एक न्यूयॉर्क के, मतलब एक स्टडी है जो बताती है कि न्यूयॉर्क के हाई स्कूल का बजट इंडिया के टोटल हायर एजुकेशन के बजट से भी ज्यादा होता था. एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, I must say this, when the Britishers left India, the literacy rate in India was close to 17%. यस. Close to 17% only. Yeah. And if I talk about the last census that we had in 2011, हम लोग का उस टाइम पे literacy rate it was close to 82%. Yeah. So the thing is कि whatever the Britishers was doing was to, like, वो एक systematic plan था कि how they would disinvest everything from India and they could invest it in their country. Like they took everything from this country, the minerals, the spices, like ये जितना भी चेन बना हुआ था कि हाँ यहाँ से पोर्ट्स को डेवलप किया गया ताकि यहाँ से आसानी से सामान बाहर ले जा सके. ट्रेन्स बनाए गए ताकि एक जगह से दूसरे जगह पे जो सामान एक्सपोर्ट करना है उसको ले जा करके बाहर भेज सके. लेकिन आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश विच वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल बैक देन, वहां पे जा करके लोगों के लूम्स तोड़ देना, उनके अंगूठे तोड़ देना वर
was a like very good thing for India. वही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बस इसीलिए तो मिस किए हैं क्योंकि Exactly, वो चक्का के सामने फेंक दिए थे भाई आप exactly. क्या Like तुम बस सोचो how ना कि लूम्स को डिस्ट्रॉय करना, उंगली हम्म, थंब को काट देना, दबा देना, कहाँ से मतलब लोगों के मन में भेदभाव कहाँ पैदा से कर कोई देना ग्रो इंग्लिश के करेगा प्रति। यार? एग्जैक्टली लोगों के मन में भेदभाव पैदा कर देना। आप आज भी यहाँ पे आप लोगों को देखोगे जिनको ना देखो बाहर का अगर कहीं से अप्रूवल आ जाए तब मेरे को ठीक रहेगा। वो माइंडसेट है कि कोई भी अगर यूट्यूबर भी है जो कि बाहर का है और इंडिया की किसी चीज पे रिएक्ट कर रहा है तो इंडियन वुड फ्लॉक टू दैट कमेंट सेक्शन, लव फ्रॉम इंडिया, लाइक नो अदर कंट्री डज दैट। like very popular, एग्जैक्टली like unpopular opinion, no country does that and you should not be। क्यों तुमको लगा ऐसा चाहिए कि हाँ लव फ्रॉम इंडिया और हाँ दिस इज लाइक इंडिया से है, वो लाइक वैलिडेशन बहुत वो इंपॉर्टेंट हो वैलिडेशन जाता है लेना एक क्यों पॉइंट। क्यों हाँ वही वो माइंडसेट ही है ना कि अगर वो वैलिडेट कर देगा तब वट एवर आई एम डूइंग इज राइट, वट एवर आई एम सेइंग इज गुड। अगर नहीं मिलता है वैलिडेशन तो वहां गलत है। नहीं है भाई, लाइक तुमको अगर इंग्लिश भी आता है तो इंग्लिश इज नॉट अ वेरी गुड लैंग्वेज। जो भी वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा इकोनॉमी है, तुम जापान देख लो, जर्मनी देख लो, एवरीथिंग इज देयर इन जापानीज और जर्मन। ऐसा नहीं कि वो लोग कहीं पीछे हैं, दे आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जापान से ज्यादा एनी वे, एडवांस जर्मनी एनी तो डे, स्टिल एनी डे। लीडर्स है। एनी डे। एंड वी डोंट नीड इंग्लिश टू एडवांस इन एनीथिंग। अगर यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि हाँ इंग्लिश आ करके वेरी गुड थिंग, इफ यू नो अ डिफरेंट लैंग्वेज इट्स अमेजिंग थिंग। सो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है, इफ यू नो इंग्लिश इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हाँ आप बाहर जाकर के कहीं पे भी कन्वर्स कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड स्किल टू हैव। बट इट इज नॉट समथिंग दैट कि जिसके ऊपर ऐसा फील यू किया शुड जाए कि हाँ हैव हाँ एग्जैक्टली। नहीं नहीं इसके ऊपर कि नहीं ब्रिटिशर्स दे के गए तो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, नहीं है। जिस कंट्री पे नो ये नो, नहीं भी रूल करते थे वहां पे भी इंग्लिश आ ही गया, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज। आपको अगर कहीं पे भी धंधा करना आपको इंग्लिश आना जरूरी है, ये धंधे का लैंग्वेज हो गया आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन के बाद। अरे सीधा बात एग्जैक्टली इतना ही समझा जाए ना कि अगर हम्म, मतलब अगर तुम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन डैमेज और मतलब द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन डैमेज लूट एंड लॉस ऑफ लाइफ, अगर हर एक चीज को फैक्टर इन करोगे तो ऑब्वियसली so much for speaking English or so much for a एग्जैक्टली growing एग्जैक्टली। economy was not required। कि ये तो कहीं से नहीं चाहिए था, मतलब इसके बिना भी हो सकती है चीजें। हाँ इट्स कौन सी नॉट कंट्री वर्थ ऐसी इट। है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको ग्रो करने के लिए, जिसको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए, अपने यहाँ इंग्लिश है। मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए इतना जान गंवाने का जरूरत था, इतना क्रुएल्टी झेलने का जरूरत था? हाँ वही ना। It's not worth the price we have paid for it। हम्म, तुम वही समझो ना कि जैसे मतलब कोई भी एक इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, सॉरी हैंडलूम इंडस्ट्री ले लिया जाए फॉर दैट मैटर। तो हैंडलूम इंडस्ट्री में क्या किया आपने? हैंडलूम इंडस्ट्री में आपने हमारे लूम्स को डिस्ट्रॉय किया, थम्स काट दिए वीवर्स के, हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दी कि इसको इंडिया में कॉम्पिटेंसी इसका खत्म कर दिया जाए, कंपटीशन इसका खत्म कर दिया जाए कि तो मार्केट से बाहर हो जाए, है ना? हम्म, इतना सब कर, और मतलब ये वही हो गया ना कि वी हैव लिटरली पेड फॉर आवर ओन ऑपरेशन, कि हम एग्जैक्टली भैया ओन पैसा लो, रिसोर्सेज मारो, एज वेल। चाबुक मारो हमको। ये चीज हुआ है। So, like, I would like to elaborate on this, what you said, we have paid for our own operation. So, during the 1900s, like the early 1900s, तो तो एक तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मल्टीपल फैमिन्स जो हैं बनाए, लाइक दे क्रिएटेड सिचुएशंस ऐसा कि इंडिया में मल्टीपल फैमिन्स क्रिएट हो। यू कैन गो टू एनी सोर्स एंड रीड अबाउट इट कि जिसमें कि मिलियंस में पीपल वर डाइंग इन मिलियंस। हाँ एंड दी और ये सब कुछ ऐसा क्रिएटेड है, लाइक उसका प्रूफ है कि हाँ दीज फैमिन्स वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। So the last one, which is the greatest, considered like बंगाल। the British, the Bengal famine. So what happens during Bengal famine is कि उन 1900s के टाइम पे जो पर कैपिटा ग्रेन का कंजम्पशन था एक इंसान का साल भर का, इट वाज अराउंड एट 210 kgs। ठीक है, और इन 30 years 1930s में इट कम्स डाउन टू 150 kgs।
ठीक है, 60 kg पर कैपिटा ग्रेन कंजम्पशन कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बंगाल वाज मेड टू बेयर एवरीथिंग द कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। द वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। लेट मी सेट द स्टेज, वर्ल्ड वॉर टू इज गोइंग ऑन, जापान मार रहा है एलाइड फोर्सेस की, यूएस एंड द यूके, ठीक है। तो अब यूके और यूएस के फोर्सेस को कहाँ से सप्लाई किया जाएगा ग्रेन्स और वट एवर दे नीड, जो भी कॉस्ट है उस फाइट को लड़ने का, इसका बर्डन डाल दिया गया पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के ऊपर। जो कि देयर इज दिस इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट टाइम, कीन्स, और वहाँ जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम पे, विंस्टन चर्चिल। These two guys, they decided that they would start printing money in India. इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन राइज कर जाएगा, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट प्रिंटिंग, जो कि वेनेजुएला में हुआ कि बहुत ज्यादा मनी प्रिंट कर दिया गया, कॉस्ट सब चीज का ऊपर चला गया, और इसका जो है तुमको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा राइस पे। राइस जो है विद इन अ फ्यू मंथ्स गॉट 300 times एक्सपेंसिव। राइस got 300 times expensive, and as a result people just kept getting poorer. राइस के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, राइस के ऊपर टैक्सेस को भी बढ़ा दिया गया कि people who were selling the rice, who were Indians obviously, they had to pay higher taxes. एक तो प्राइस 300 टाइम्स बढ़ा दिया गया, पीपल जो राइस बेच रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस भी हाई है, ऑल दिस सो दैट द एलाइड फोर्सेस कुड बी फंडेड। पूरा का पूरा फंडिंग बंगाल से निकल करके जा रहा है इस टाइम पे, है ना। और इसी तरीके से कीन्स एंड विंस्टन चर्चिल killed more than 3 million people in India. 3 million people in India, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। दिस इज द ग्रेट फैमिन ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, which was much more than UK and US combined. जो लोग वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जितना लोग लूज किए, उससे ज्यादा इंडिया लॉस्ट विदाउट फाइटिंग फॉर अ वॉर, जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन होना भी नहीं चाहिए था, इन अ वॉर जिसमें जो कि हमारा था भी नहीं। वी लॉस्ट मोर पीपल देन यूएस एंड यूके कंबाइंड। हाउ कैन यू से कि ये ह्यूमेन है? इट वाज नॉट अ डिफरेंट टाइम, यू कैन नॉट से कि डिफरेंट टाइम था, इट वाज बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन। एक सिस्टमैटिक वे में इस चीज को किया गया है। इट वाज डन इन सच अ सिस्टमैटिक वे कि यहाँ से आप पैसा निकालो, यूके और यूएस को दो। the thing that Winston Churchill said कि अगर हम लोग यहाँ पे सामान भेजते हैं, if we send the grains or whatever the people need to India, Japan would attack and take it already, so we won't send it. Like इस तरीके के लोग were the people ruling, and they decided that we were not good enough for them. We were only the ones जिनको की सामान सप्लाई करना है, we are only the ones जिनको की खटना है, जिनके पीठ पे आप कदम रख करके आप लैडर के ऊपर चढ़ोगे just to become a super power. नहीं, this was wrong. एक systematically किसी को दबाना is wrong, no matter what time it is. People know, like आज भी repercussion में अपन को कुछ नहीं मिला है। आज भी हमारे देश का जितना भी सौगात था सब कुछ जाकर के वहां म्यूजियम में पड़ा हुआ है। The things that were made hundreds of years ago. or as Shashi Tharoor would like to say, चोर बाजार। चोर बाजार, एग्जैक्टली। लाइक वो पूरे बहुत दुनिया सही का, मेरे को लगा था वो एनालॉजी की। ब्रिटेन में आई हो तो ब्रिटिश म्यूजियम जरूर जाना, और एज वी कॉल इट इन इंडिया, चोर बाजार। चोर बाजार, अरे भाई या तुम सारा का सारा चीज, एक्चुअली एकदम सारा का सारा चीज, सारा का सारे सारा स्टोर करके मतलब रखे वो हुए हैं। जितने भी कंट्रीज को ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइज किया था, सारा सामान कोलोनाइजेशन, सारा उनका अपना कुछ नहीं है वहाँ, कुछ भी they नहीं है। don't have a उसको history ब्रिटिश भाई, म्यूजियम they were उसको bunch ब्रिटिश of म्यूजियम पता barbaric नहीं क्यों people. बोला जाता है, उसको हाँ, ब्रिटिश म्यूजियम पता नहीं क्यों बोला जाता है, उसको इंडियन म्यूजियम, अफ्रीकन म्यूजियम उसको ऐसा ग्लोबल नाम देना म्यूजियम चाहिए बोलो, कि जस्ट कॉल उसको इट अ ग्लोबल ग्लोबल म्यूजियम, जहाँ पे सबका सामान रखा हुआ है, नथिंग। या चोर ब्रिटेन का बाजार, अपना या कोई चोर हिस्ट्री बाजार। नहीं है भाई, ब्रिटेन का अपना कोई हिस्ट्री नहीं है। लाइक वी कम फ्रॉम पता अ है उन प्लेस ऑफ वहां के कल्चर। बच्चों को भी, वहां के बच्चों को भी ये सारी चीजें, मतलब वहां के बच्चों को भी हिस्ट्री में एक लड़की का मैं वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, बहुत पहले की बात है।
तो वहाँ वो उसने ना मास्टर्स या पीएचडी कुछ कर रखा था हिस्ट्री में। हिस्ट्री में, यस यस, आई नो द और वीडियो। और उसको और उसको ना कुछ आइडिया ही नहीं था, उसको एक एक चीज, एक एक डिटेल वहां के स्पीकर से पता चल रही थी कि ये रिpercussion, मतलब इतने तरह का ऑपरेशंस किया है ब्रिटिशर्स ने। वो बता रही थी कि उनके स्कूल्स में कभी ये सब नहीं सिखाया जाता, उनको हमेशा बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जिस जिस कंट्री को कॉलोनाइज किया था वो उनके बेटरमेंट के लिए कॉलोनाइज किया। हाँ हाँ हाँ, is very absurd, which is very, very absurd. yeah, they are still in denial that they did something very wrong. They are still in denial that they तुम did something very wrong. और इसके ऊपर people are इतने debating कि हाँ अमीर they कंट्री gave में us, हम्म इतने अमीर कंट्री को जब इन्वेड कोई करता है, मतलब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, है ना। और हमारा शेयर जितना था वर्ल्ड इकोनॉमी में, हम लोग सब चीज जानते हैं। तुम सोचो कि जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए, उस टाइम पे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 27% के करीब थी। उस टाइम पे इंडिया में 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते थे। 90। एक True. अमीर कंट्री में आप आते हो, आप लूट मचाते हो, और राइटली बीइंग सेड कि दे टुक द वर्ड लूट, which is a Hindi word, and certainly its tendency as well, certainly the character as well into yeah, their dictionary. like imagine people saying कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना इन अ कंट्री जहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं। डू वांट अस टू मेक बिल्डिंग्स, और तुम भी जो बिल्डिंग दे करके और गए तुम हो छोड़ के गए हो वैसा। हाँ, और लाइक तुम्हारा भी जो बिल्डिंग है उसका छत इतना ऊंचा क्यों है? जहाँ पे पंखा लगाने के लिए आई हैव टू ब्रिंग अ स्टोर, इतना लंबा रॉड क्यों ऐसा बना करके गए? अगर इंडिया आए थे तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बना करके जाते ना। ऐसा बिल्डिंग क्यों बना करके गए जिसका कि छत इतना ऊंचा है? नहीं चाहिए। यहाँ पंखा लगाना पड़ता है, तुम्हारे इधर गर्मी नहीं पड़ती, तुम मत लगाओ पंखा, तुम बनाओ ऊंचा छत। हमारे यहाँ पड़ती है भाई, इतना लंबा लंबा भाई, उधर रॉड लगा करके रखा है पंखा लटकाने के लिए। क्या मतलब है इसका? कुछ ढंग का बना के जाते। हम तो ये भी नहीं बोलेंगे कि ढंग का बना के गए हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, यहाँ का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू भी है हमारे पास, तो बना ही है। आजादी के 75 साल के बाद वी हैव मेड समथिंग आउट ऑफ इट। आई डोंट नो और हाउ भाई गुड इट ये इज, आई जो भी हैवंट है, बीन आई देयर आई टू डोंट थिंक कि वो मतलब अलग जो पॉलिटिकल भी ये मैटर है। बोल रहा है कि काइंड ऑफ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने स्कूल दिया, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, पता नहीं, इफ समवन इज टॉकिंग शिट अबाउट माय कंट्री आई डोंट थिंक आई शुड इवन रिमेम्बर हिज नेम, मेरे लिए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एंड्रू सो टेट, वो जो भी, सॉरी, एंड्रू टेट, या तो टट्टा बोल ले, टट्टा बोल ले वैसे ही तो बोल। वैसे ही भाई दिख अपने लोकल लैंग्वेज में जो बुलाना है बुला सकते हैं यार, नॉट अ प्रॉब्लम। बट यार वेरी बैड, कुछ नहीं दे के गया, उल्टा लेके गया। नहीं आता तो यार आज भी हम उतने ये पीक पे रहते हैं, आज भी हमारा जीडीपी जो भी था, प्रोडक्शन कैपेसिटी 24-25% से ऑब्वियसली इंक्रीज करता। और इस भाई चीज वी को वी ब्रैक करना वी कि वर द मतलब ग्लोबल लीडर्स, लाइक इवन बैक देन वी वर एग्जैक्टली द ग्लोबल लीडर्स। हम लोग एग्जैक्टली टन्स में सिल्क सप्लाई करते थे रोमन एम्पायर को। दी रोमन एम्पायर के टाइम एक्सपोर्ट्स था पे भाई, एक्सपोर्ट्स जो था, भी बहुत वो हाई लोग हाई लेवल पे पहनते थे, लाइक एक्सपोर्ट्स था। जो भी वहाँ पे हायर ऑफिशियल्स थे, जो भी मतलब एकदम हायर पोस्ट पे बैठे रहते थे, वो जो सिल्क पहनते थे उसको कौन सप्लाई करता था? इंडियंस। वी इंडियंस वर द सप्लायर ऑफ इट। लाइक उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर बहुत पीक पे था। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बहुत ऐसा कम हिस्ट्री वाला जगह से आते हैं, विच इज कम हिस्ट्री वाला प्लेस के बारे में आपको जानना है तो गो रीड दी हिस्ट्री ऑफ यूके, विच वाज वेरी बारबेरिक। वहाँ पे बस बारबेरिक लोग ही थे। पता नहीं एग्जैक्टली व्हाई दे थिंक कि वो लोग सिविलाइज्ड हैं, आई डोंट गेट इट। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली अगर तुमको देखना है सिविलाइजेशन का अग्रीड। एक मतलब कहाँ होता है कि इंडोनेशिया का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है, बिकॉज वी वर द रूलर्स ऑफ इंडोनेशिया। Indonesia is called Indonesia because Indians were the rulers of Indonesia. इंडोनेशिया को इंडोनेशिया इसलिए बोलते क्योंकि हम लोग वहां रूल करते थे, लाइक वो हमारा। इवन क्यों टुडे रूल इफ यू क्यों करते थे रूल?
क्योंकि एज द शिप्स गॉट बेटर तो वो लोग कराची के पोर्ट पे रुकने के बाद सीधा इंडोनेशिया जाके रुकने लगे, इंडिया का सदर्न पोर्ट्स पे रुकना बंद हो गया बिकॉज द शिप्स गॉट बेटर। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम लोग उधर का पोर्ट जाके कैप्चर कर लेते हैं, प्रॉफिट। लाइक तुम सोचो उस टाइम पे इतना बड़ा नेवल आर्मी क्रिएट करना, टू गो टू अ डिफरेंट आइलैंड और उसको कंप्लीटली कैप्चर करके अपना बना लेना। इवन द मॉडर्न वर्ल्ड कॉल्स इट इंडोनेशिया, उसका नाम पहले कुछ और होता होगा, आई डोंट नो, बिकॉज वी यूज्ड टू रूल इट, इट्स ऑल इंडिया, इंडोनेशिया में। हाँ, इस पे भी रिसर्च कर लेना, इफ यू गाइस आर गोइंग टू कोट इट ऑन अस, लाइक एक बार रिसर्च कर लेना, आई हर्ड इट समवेयर एंड आई एम सेइंग प्लीज। कैरी ऑन। और ऐसे भी बोला ही जाता है कि मतलब इंडियंस को मैक्सिमम इंडियंस जिस को टाइम धंधा करना सिखाना नहीं पड़ता है। जिस टाइम पे जिस टाइम पे यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, यहाँ का एक गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जब वो इंडिया से रिटायर होके जब अपने कंट्री जाता है तो वो वहाँ का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन रहता है, बिकॉज वो इंडिया में मतलब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी तो जितना कमाती है वो तो कमाती है यहाँ पे बर्बादी करके, उसके ऑफिसर्स, उसके क्लर्क्स, उसके कोई भी स्टाफ इतना ज्यादा पैसा उस टाइम कमाते थे, इतना ज्यादा पैसा कमाते थे कि उसका कोई हिसाब नहीं होता था। होता क्या था कि उस टाइम पे उनको ना एक तो सबसे पहले रॉयल चार्टर जो उनको मिला था, जो कि रानी ने इशू किया था उस टाइम पे, तो उसमें ना इट वाज मेंशन्ड कि दे हैव द राइट टू यूज फोर्स टू परस्यू देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। ये एकदम क्लियर है। तो अगर कोई बोलता है कि दे केम हियर फॉर ट्रेड, तो ये क्लॉज क्यों था फिर, है ना? ये ट्रेड के पर्पस के लिए, मतलब लिखा हुआ है उसमें कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, बट राइट टू यूज फोर्स, फोर्स ऑन ऑन हुम? मेरे कंट्री में आके मेरे ऊपर फोर्स आपको आप मतलब आपको ये राइट मिला हुआ है। तो कितना बड़ा सपोर्ट है एक कंपनी को, उसके कंट्री का कितना बड़ा सपोर्ट है कि वो जानता है कि हम लड़ भिड़ जाएंगे और मेरी कंट्री हमको आके बचा देगी। हाँ, the last मुगल रूलर बहादुर शाह जफर टू, लाइक किस तरीके से उसको डिथ्रोन किया गया था। हाँ, ही वाज अ किंग, ठीक है, लाइक इंडिया का किंग था, ही वाज द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम। ही वाज स्ट्रिप्ड नेकेड, हाँ, केप्ट इन अ केज, और उसको चौराहे पे ले जाकर के खड़ा कर दिया गया टू शेम हिम, एंड पीपल वुड एक्नॉलेज दैट ही इज नॉट द किंग एनीमोर। और फिर रंगून में ले जाकर के he was put in a cell where he died, and even his body wasn't recovered. So these barbaric people won't even let the people जिनके कल्चर को आप आकर के इन्वेड कर रहे हो, whether it be Hindus or Muslims, उनके कल्चर को आप आकर के इन्वेड कर रहे हो, and you are not even giving them the right to exercise the last rights, जो कि basic humanity का right है भाई, बेसिक ह्यूमैनिटी का राइट है। यू आर टेकिंग दैट अवे फ्रॉम पीपल, and you call yourselves to be the most advanced civilization in the world, and you call yourselves to be the greatest civilization Fuck on you. earth, then fuck off. You are not the greatest civilization on earth. I belong to a civilization that started before you guys could even imagine what a civilization could be. My civilization started way back before your civilization could even imagine Come what a into civilization existence, I could guess. be. Yes. And that is how you guys can see कि किस तरीके से these Britishers decided कि they can rule over a country, and even then have the audacity years later, after like giving them their independence back to them, और उसके बाद भी they are not sorry for whatever they did. So like They think that it is just a boon for Indians. It is not. It yeah, is not. like To be you very frank. like वैसा कुछ ये नहीं था। हाँ हाँ, मेरा मेरा हक था, भाई, लेकिन हमको वापस मिल गया। Like, हाँ, और I'm not तुमको पता है thankful to जब you. जब जब भी कोलोनाइजेशन का बात होता है तो एक बात आता है कंपनसेशन का, कि कितना कंपनसेशन फिर आपको मॉनेटरी टर्म्स में मिलना चाहिए। तो लास्ट कुछ साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट
कुछ साल पहले कुछ एक अमाउंट ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पे करने की बात करी थी या की थी, ऐसा कुछ था। they और paid something. Yes. हाँ, they paid something, right? Yeah, they paid something. But That amount was less than what India gives out as subsidies to in fertilizers, specifically in fertilizers. That Yeah. amount was less than that. So अगर कोई मतलब I strongly support that thought कि if something in compensation has to be paid, it must not be anything more than just £1 per year for 200 years. Because that will show the world, because तो आप पैसा देके तो हमको कुछ कर नहीं सकते हो अब, क्योंकि एक तो वो क्वांटिफाइबल नहीं है, और क्वांटिफाई करेंगे तो शायद आप पे नहीं कर पाओगे उतना. तो इट्स बेटर कि you just pay $1. You just pay one pound. You just pay £1 every year for the next 200 years, and that will be your apology, or that will be my compensation. I will have just £200 from your country, but you pay one pound each year for like the next 200 years. 200 years. So I strongly support that thought. मतलब और कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं मान सकता कि इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडिया का मॉडर्नाइजेशन ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ है. कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. We have gone back as a culture. We have gone back as civilization. We have gone back in our mentality. We have gone back sometimes, but अभी देखो, I will never say कि अभी we are fighting back. We are fighting back forward. हाँ, वो we are fighting back forward, and I guess we are doing good. We are not doing anything bad. सब सही है, क्या गलत है? ठीक है, कुछ होती है, ऊपर चीजें हो जाती है. सब चंगा सी. मोदी सब चंगा सी है. मोदी है तो मुमकिन है. मोदी है तो मुमकिन है. So, like with this, I would like to conclude this episode of the Perpetual Stew podcast. Like as you can see, the conversation isn't ending here, but we'll have to end it here because this is a place where the conversations don't end. So we have so much things to say. Yes. कम से कम यार, मतलब वो चीज तो आया ही नहीं कि दुगना लगान देना पड़ेगा. वो कौन बोलेगा कि ब्रिटिश रूल के बाद दुगना लगान कौन देगा? Maybe I think maybe we can come up with this particular topic in much great detail, because in much great as of detail, now we have not read much now about it. We can read something more about. Someday we can go live again, revisit this topic, right? Yeah, yes. we can revisit this topic, and we can have a great session on this as well. We can because have 200 I years had a lot to say. Yeah. But we can have we can have multiple people on the panel as well, and we can have their inputs here. So do let us know in the comments, guys, how did you like this episode? What else can we make better in our episodes? Or also you can keep on suggesting on what topics would you like us to discuss something, right? कि वो input भी बहुत अच्छा लगेगा. We'll see कि if we can meet up to your expectation, your all expectations, right? Sure. And even if you want to be in some of our videos, you want to discuss with us, also do let us know in the comment section. We'll try something out of it. We'll make something out of it. And with that, I would like to say you goodbye, and make sure that you like the video, you share it with everyone that you know, leave a comment down below, or subscribe to karke hi jana. Like if you have made it to this point, make sure you subscribe to our channel. It is very important for us. It looks also press the bell icon if you want. Yes, bell icon is up.